No, hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish Classes. In this video, we are learn about class 7 chapter number 23, non-finity. What is non-finities? So, in sentence, the specifics not a specifics numbers, persons, and tense each called non-infinities. So let's start. In this video, we are learn about finities and non-finity and types of non-finities. So let us start. First is finities verbs. What is finities? In this sentence have a specifics a specifics numbers, tense, and one more persons. Specifics, persons, numbers, and tense each called finities verbs. Example: the boy wants a pen. So the boy is a specific, persons wants a specific, tense, and a pen is a specific numbers. Each called finitive verb. Means in any sentence a specific number, a specific tense, and a specific persons is called finitive verbs. We complete the finitive verb, and second is non-finitive verb. So what is non-finitive verb? In the sentence, not a specifics, persons, tense, and number each called non-finitive verb. Example: Rani always wanted to sing. In this sentence, Rani is a specific persons, and wanted is a specific tense, but to sing is not a specific number. So in this sentence I have two specific persons or specific tense, but a specific number is not. So it is not called a finitive verb, it is called non-finitive verb. So we complete non-finitive verb, and we next is types of finitive verb. First is infinitives. Infinitives you find we are easily find that in this sentence is used to and or is called infinitive sentence. So example: I try to find the secret of his success. Means I tried. In this sentence, to find is our infinitives. So to find in this sentence, to find is our infinitive. So in any sentence or here to is called infinitive. So we complete infinitive. Second is journals. So what is journal? We are easily find that in any sentence the verb in this sentence the before are placed on a subject or a object is called a journals. So examples: walking briskly in the park is beautiful. Means walking is verb, so it is used in subject place. So in any sentence before is used is called journals. And second is we complete journals, and second is the participles. So what is participles? So participle we find easily that in any sentence to visuals adjectives. I means in the sentence adjective and adverb also is called the participles. Examples: Priyanshu has seen the player carrying the ball. Means in this sentence adjective or adverbs are also, so it is the participle. So any questions please ask in comment box. I repeat in Hindi. So let start. So हम लोग एक बार इसे हम लोग हिंदी में देखते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक है नॉन फिनिटी होता है क्या. तो हम लोग देखते हैं जो नॉन फिनिटी है वो फिनिटीज और नॉन फिनिटीज दो टाइप से. तो हम लोग देखते हैं पहले फिनिटीज देखते हैं. तो फिनिटीज होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक्स टेंस या स्पेसिफिक्स पर्सन्स हो, उसे हम लोग इन
इन्फिनिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल में द बॉय वॉन्ट्स अ पेन मीन्स एक द बॉय वो स्पेसिफिक पर्सन से और वॉन्ट्स है वो स्पेसिफिक टेंस है और अ पेन आया जो स्पेसिफिक नंबर है। तो इसमें से जो इन्फिनिटीज है वो उसमें हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर होता है, टेंस होता है, पर्सन होता है, उसी को हम लोग फिनिटीज वर्ड बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है नॉन फिनिटीज। सो नॉन फिनिटीज होता क्या है? तो अगर नॉन फिनिटीज अगर कोई भी सेंटेंस में अगर स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक नंबर और स्पेसिफिक टेंस नहीं होता हो उसी को हम लोग नॉन फिनिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में रॉनी ऑलवेज वांटेड टू सिंग। तो इस सेंटेंस में जो रॉनी है वो एक स्पेसिफिक पर्सन से, जो वांटेड है वो स्पेसिफिक टेंस है, लेकिन जो टू सिंग है वो स्पेसिफिक नंबर नहीं है। तो इनमें से इसमें स्पेसिफिक तीनों होने चाहिए, स्पेसिफिक नंबर, टेंस और पर्सन तीनों होने चाहिए तभी वो फिनिटी रहता है। तो इसमें से नहीं है तो ये नॉन फिनिटी है। मीन्स जिस सेंटेंस में वो स्पेसिफिक नंबर से टेंस और स्पेसिफिक नंबर्स, टेंस एंड पर्सन्स और नहीं होता उसी को हम लोग नॉन फिनिटीज बोलते हैं। तो हम लोग ने नॉन फिनिटीज खत्म। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन फिनिटिव। तो क्या है? फर्स्ट हम लोग का द इन्फिनिटिव्स। तो क्या है वो? अगर कोई सेंटेंस में अगर टू और का यूज होता है उसी को हम लोग इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आई ट्राई टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस मीन्स जो इसमें सेंटेंस है वो टू फाइंड है, तो यहाँ पे टू का यूज हो रहा है। तो ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब जो हम अभी कंप्लीट करें, अब देखते हैं जर्नर्स से। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा तो आप उसे मेरे को बता दीजिएगा। तो ये जर्नर्स, तो इसका अगर इसे सबसे अच्छा पहचान है कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर बिफोर का यूज होता है और वो सब्जेक्ट की जगह पे हो, चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पे या वर्ब की जगह पे, उसी को हम लोग जर्नर्स बोलते हैं। तो ये वॉकिंग है जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। तो एग्जाम्पल में देखिए, वॉकिंग ब्रिस्कली इन द पार्क इज ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस में जो वॉकिंग है वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। तो अगर उसी को हम लोग जर्नल्स बोलते हैं। अब देखते हैं, हम लोग ने जर्नल्स कंप्लीट किया। अब देखते हैं द पार्टिसिपल्स। द पार्टिसिपल्स है क्या? अगर कोई भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों साथ में उसी को हम लोग द पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि प्रियांशु हैज सी द प्लेयर्स कैरी क्राइंग द बॉल मीन्स जो प्रियांशु है वह जो खिलाड़ी को देखा खिलाड़ी के बॉल को रोते हुए। तो यहाँ पे जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, तो यहाँ पे उसे हम लोग पार्टिसिपल। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।